So hey everyone, today I'm going to explain how you can replace missing values in SAS, and already I made one video how to replace missing value in SAS, and this is the second part of that video. So we are going to see something more if you missed in the first part of how to replace missing value. So you can see in the screen guys, I have created a data exp1. It contains 6 variables: name, sex and class. These are character variables. ID, age and height, these are numeric variables, and each of the variable containing 4 records, and each of the variables is having one missing value at least. Let me run the data and let me show you. You can see name variable is having one missing value, even sex variable is having, class, and same for other numeric variable. At least one missing value I have kept knowingly, and today we are going to see how we can replace it. On 11th row I have created a new data name is exp2. I have called the previous data exp1. You can see this data I have created. This I have called on 12th row. On 14th row I have written array. An array is used to group variables. Now you know there are more than one variable on which we have to perform action. Let's suppose for name, sex and class variable, which is character variable, I want null, okay, wherever missing values are there. And for ID, age and height variable, wherever missing values are there in these variables, I want 0. So before performing that, I have grouped the character variables. So I have created an array. Array is used to group variables, and the array name I have given character var. Why I have given, you can give any name. Character var I have given because I am selecting or grouping all the character variable. In bracket I have given 3 because I am going to group 3 variables, that is name, sex and class. Then I'm creating a do loop and I'm writing do loop name I. You can give any name, and I'm giving 1 to 3 because I want to perform action on 3 variable: name, sex and class variable. Now on 16th row I'm giving a condition if missing character var. Character var is nothing but the array name. If missing character var, it means if this array name contain missing value and that array name is calling indirectly name, sex and class variable. If name, sex and class variable is having missing value and we need to perform on 3 variables, that's why we have given I, okay, I contain 1 2 3, then character var I equal to null. Character var is nothing but array name. You have grouped 3 variables. I contains 3 times because on 3 variables you have to perform 3 times, that's why 1 2 3 equal to null. And then you have written do loop, so you have to AND the do loop, that's why we have written AND. So here the work is done for character variable. Now the character variable missing values will be replaced with null. Now let's do it for numeric as well. Again we have created a new array and we have given the array name numvar. You can give any name, but we have given related name because we are going to select numeric variable. In bracket we are writing 3 because we are going to select 3 variables, that is ID, age and height, and all of these 3 variables are numeric. We are closing with semicolon, closing the statement. In do loop we are writing 1 2 3. On 3 variables we have to perform action I equal to, and I is the do loop name. 21 row we are writing if missing numvar. Numvar is nothing but array name. We are calling this ID, age and height variable. If ID, age and height variable is containing missing values, then in the numvar array itself, and I we are calling again because on 3 variables we want to make changes, equal to 0. It means if missing values are there in ID, age and height variable, 0 should come instead of missing. Again you are ANDing this do loop. So whenever you start a do loop you have to AND it, and then you are dropping I. This I we are using for internal purpose, okay, this is not something we want in the output data, that's why we are dropping here. And then finally we are running run. So let's execute this program. You can see in name, sex and class variable the missing values got replaced with null. You can see in the name variable second row null is coming, in sex variable null is coming in the first row, in class variable null is coming in the third row. So wherever missing values were there, it got replaced. And in the numeric variables, in the ID, age and height, you can see again missing values got replaced with 0. Now this is one way of doing it. Now let's see some more ways. This time again I have created a new data exp3 on 26 row. 27 row I am calling the raw data exp1, that is in the beginning we created. 29th row I am writing array again to group variables. An array name I am giving character var,
as I said, you can give any name. I'm just trying to give meaningful name. This time in bracket, instead of mentioning how many variables I have to group or I want to group using array, I'm giving asterisk symbol. Guys, I'm showing you how the same thing can be performed with different ways in SAS. And ये सभी ways easy ही हैं, but if you are beginner to SAS, then you might feel a little difficult, okay, or else these things are very easy. And this video is specially for those people who have the knowledge of SAS, जिनको SAS आता हो. For those people who don't know SAS, it might be difficult for them, okay. So let me explain this time again in a layman language in a very easy way. See, SAS में अगर data create करना है, you have to write data and the data name we have created xp3 semicolon to close statement. What does it mean by statement? Statement is nothing but जब भी आप SAS सॉफ्टवेयर को कुछ भी कहते हो, okay, so that is a statement. So these all things which are coming in blue, right? Data, set, array, these are statements. So you need to close that statement. SAS को नहीं पता होता है वो statement कब खत्म होगा. तो आपने बोला मुझे डेटा क्रिएट करना है, फिर SAS ने बोला अच्छा डेटा का नेम क्या होगा, आपने बोला exp3, फिर exp3 आपने दे दिया, फिर उसके बाद स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया. 27 रो पे हमने सेट लिखा है. सेट इज़ यूज टू कॉल द एग्जिस्टिंग डेटा, जो डेटा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. यहाँ पे हमने ये exp1 क्रिएट किया है, उसी को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. एरे यूज़ होता है वेरिएबल्स को ग्रुप करने के लिए, ओके. तो यहाँ पे हम वेरिएबल्स को ग्रुप करने वाले हैं और एरे नेम हमने दिया है कैरेक्टर वेरिएबल CHAR_var. एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हमने एस्ट्रिक सिंबल लिखा है. यहाँ पे हमें लिखना होता है या देना होता है कितने वेरिएबल्स हमें ग्रुप करने हैं. एस्ट्रिक सिंबल देने से क्या होता है, आपको एग्जैक्टली नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके बाद आप वेरिएबल के नाम देने वाले हो, राइट, कौन से वेरिएबल आपको ग्रुप करने हैं. तो एस्ट्रिक सिंबल वहाँ से ही काउंट कर लेगा. यू डोंट नीड टू मेंशन एनी पर्टिकुलर नंबर हियर, बिकॉज आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू मेंशन द वेरिएबल नेम. फ्रॉम दैर एस्ट्रिक इज गोना काउंट द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू आर ग्रुपिंग. नेम वेरिएबल से लेके क्लास वेरिएबल के बीच में या उनको मिला के जितने वेरिएबल्स होंगे वो ग्रुप हो जाएंगे. दिस इज़ अ वे ऑफ सेलेक्टिंग वेरिएबल. तो देखो, नेम से लेके क्लास के बीच में नेम है, सेक्स है और क्लास है. तो नेम आपने स्टार्टिंग वेरिएबल दे दिया, क्लास एंडिंग वेरिएबल, यानी उनके बीच में जितने वेरिएबल्स होंगे वो ग्रुप हो जाएंगे. दिस इज़ अ वे ऑफ सेलेक्टिंग वेरिएबल. आपको फर्स्ट वेरिएबल नेम देना है, लास्ट वेरिएबल नेम एंड डबल हाइफन. सो वो वेरिएबल्स और उनके बीच के वेरिएबल्स सेलेक्ट हो जाएंगे. तो हमें पता है यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हमने सेलेक्ट किए हैं. तो हमने डू लूप में दे दिया i = 1 2 3, क्योंकि हमें 3 टाइम्स चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं. फिर कंडीशन में हमने दिया है इफ़ मिसिंग कैरेक्टर वॉर इज़ नथिंग बट एरे नेम. फिर आई इंडेक्सिंग को हमने डू लूप को कॉल किया है, 3 टाइम्स हमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने हैं. देन कैरेक्टर वॉर अगेन एरे नेम. आई डू लूप नेम हमने कॉल किया है, क्योंकि कैरेक्टर वॉल को हम क्यों दे रहे हैं यहाँ पे. देखो, देन के बाद आप नया वेरिएबल नेम देते हो, हमें एग्जिस्टिंग वेरिएबल में चेंज चाहिए, तो हमने यहाँ पे एरे नेम दे दिया जो कि कॉल कर रहा है एग्जिस्टिंग वेरिएबल को, इक्वल टू नल. सो यहाँ पे ये और ऊपर वाला कोड ऑलमोस्ट सेम है. दोनों में डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो. यहाँ पे जब हमें ब्रैकेट में सेलेक्ट करना था कि कितने वेरिएबल ग्रुप करने हैं या बताना था, तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग नंबर, देखो यहाँ पे नंबर दिए हुए 3 वेरिएबल, आपने एस्ट्रिक सिंबल दिया. ओके, एस्ट्रिक सिंबल अपने आप काउंट कर लेगा. कहाँ से काउंट करता है एस्ट्रिक सिंबल, उसके बाद आप वेरिएबल्स के नेम देते हो वहाँ से काउंट कर लेता है. यहाँ पे भी हमने वही किया एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, द होल कोड इज सेम. इस वे से भी आपको आउटपुट मिलेगा. सो इट विल रिड्यूस द टाइम फॉर काउंटिंग वेरिएबल. अगर आपको काउंट नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ पे एस्ट्रिक दे सकते हो. जैसे कि ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल हो, आपको काउंट करना पड़े मैनुअली, इससे अच्छा आप एस्ट्रिक दे दो. नाउ लेट्स सी वन मोर वे. अगेन ऑन 41 रो वी क्रिएटेड अ न्यू डेटा. 42 row we are calling the previous data. 44 row we are writing array to group variable. Array name is character var. Asterisk we are giving to count the number of variables. Okay, we have written underscore character underscore. This will select all the character variables. You have written do I = 1 to dim. सो यूजली जितने भी वेरिएबल होते थे या जितने वेरिएबल पे आपको चेंज चाहिए वो वेरिएबल्स आप मेंशन करते थे, काउंट 1 to 3, 1 to 10. ओके, अभी हमें पता है कि कैरेक्टर वेरिएबल कितने हैं. नेम, सेक्स एंड क्लास, हमारे डेटा में 3 ही कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डॉलर सिंबल है. डॉलर सिंबल हम कैरेक्टर वेरिएबल के बाद ही देते हैं, या जिन वेरिएबल्स को कैरेक्टर बनाना होता है. बट आपने 1 to dim लिखा है. 1 to dim का मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेट कर दिया आपने प्रोसेस को. जैसे कि एस्ट्रिक सिंबल से आपने ऑटोमेट कर दिया कि नंबर, एग्जैक्टली नंबर मेंशन करने की जगह आप एस्ट्रिक देते हो और वो काउंट कर लेता है. अब यहाँ पे आपने अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडरस्कोर दिया है ना, तो वो काउंट कर लेगा, सारे कैरेक्टर वेरिएबल सेलेक्ट कर लेगा और वहाँ से ही ये एस्ट्रिक काउंट कर लेगा कि कितने कैरेक्टर वेरिएबल हैं. अब क्योंकि लेट सपोज इन केस आपको नहीं पता
क्योंकि आपने ये प्रोसेस को ऑटोमेट किया। अगर 100 कैरेक्टर वेरिएबल आपने मैनुअली जाके काउंट नहीं किया तो आपको 100 में चेंज चाहिए, तो आपको यहाँ पे 1 to 100 लिखना पड़ता। बट लेट सपोज आपको काउंट नहीं पता, आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 1 to dim। तो 1 to dim लिखने के बाद इन ब्रैकेट और पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट एरे नेम। तो क्योंकि उसके बाद 1 to dim लिखने के बाद आपने एरे नेम दिया है, तो एरे नेम में से काउंट कर लेगा, जो dim लिखा है आपने फंक्शन, ये काउंट कर लेगा एरे नेम में से कि कितने कैरेक्टर वेरिएबल थे। बिकॉज यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल के बाद काउंट आता है, राइट, तो वहाँ से अपने आप वो काउंट कर लेगा। तो 1 to अगर 100 वेरिएबल्स होंगे तो 100 हो जाएगा बिहाइंड द सीन। ओके, आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हो आपने डिम लिखा है, डिम इज काइंड ऑफ फंक्शन ऑटोमेटिंग इट डायमेंशंस कि ये अपने आप सेलेक्ट कर ले जितने भी वेरिएबल्स हो। फिर आपने सेम चीज़ लिखी है, इफ मिसिंग कैरेक्टर वर आई देन कैरेक्टर वर आई इक्वल टू नल। अगर इस जितने भी वेरिएबल्स ग्रुप हुए हैं एरे में, अगर उसमें मिसिंग वैल्यू है तो वो रिप्लेस हो जाए नल से। सेम आपने न्यूमेरिक के लिए भी किया है। 49 रो पे एरे लिखा है, एरे नेम दिया है नम वर, अगेन एस्ट्रिक सिंबल दिया है काउंट के लिए, काउंट की जगह काउंट ना देते हुए आपने सीधा एस्ट्रिक दिया है, वो बिहाइंड द सीन काउंट कर लेगा। कहाँ से काउंट करेगा, क्योंकि उसके बाद आप वेरिएबल्स के नाम देते हो। अब यहाँ पे आपने वेरिएबल नाम नहीं दिया, आपने लिखा है अंडरस्कोर न्यूमेरिक अंडरस्कोर। जैसे अंडरस्कोर कैरेक्टर अंडरस्कोर सेलेक्ट करता था सारे कैरेक्टर वेरिएबल को, अंडरस्कोर न्यूमेरिक अंडरस्कोर दिस सेलेक्ट ऑल द न्यूमेरिक वेरिएबल्स। एंड इन डू I इक्वल टू 1 to dim वी हैव रिटर्न, इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग कि कितने वेरिएबल थे 1 to 10 जिन पे चेंजेस चाहिए 1 to 100, आपने 1 to dim लिखा है। दिस इज ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। 1 to dim एंड एरे नेम। सो ये क्या करेगा, इट विल काउंट फ्रॉम द एरे नेम हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर एंड इट विल कम बिहाइंड द सीन इंस्टेड ऑफ dim it will come 1 to 20 like the number of variables which is in the array. Then this row is same 51 row, if missing num var I is the indexing name or do loop name, then num var I equal to 0, and then ending the statement, okay, not the statement, do loop you are ending here. I we don't need for display, that's why every time we remove I and again you will get the same output. Now अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक डेटा है exp5, इसमें सारे वेरिएबल कैरेक्टर है, नेम, सेक्स, क्लास, आईडी, एज एंड हाइट। अब सारे ही वेरिएबल कैरेक्टर तो हैं, बट आईडी, एज और हाइट इन वेरिएबल्स को होना चाहिए न्यूमेरिक, बट हमने क्या किया, उसे कैरेक्टर की तरह क्रिएट कर दिया है। अब आपको पता है सैस रीड कैसे करता है। अगर कैरेक्टर मिसिंग वैल्यूज होती हैं तो वहाँ पे ब्लैंक आता है, न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू होती है तो पीरियड सिंबल आता है। बट यहाँ पे आपने डॉलर सिंबल दिया है तो सारे ही वेरिएबल कैरेक्टर हो जाएंगे और सबके लिए मिसिंग, यू कैन सी नेम, सेक्स एंड क्लास मिसिंग वैल्यूज आर देयर, आईडी, एज एंड हाइट मिसिंग वैल्यूज आर देयर। देखो ये एक डिफरेंस है, मैं आपको पहले डेटा में बता देता हूँ। यहाँ पे देखो नेम, सेक्स और क्लास को ही हमने डॉलर सिंबल दिया है तो वो कैरेक्टर वेरिएबल है। आईडी, एज एंड हाइट को डॉलर नहीं दिया है तो वो न्यूमेरिक वेरिएबल है। अब मैं यहाँ पे रन करूँगा, आपने कोड लिखते वक्त तो सब में मिसिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे किया है, पीरियड सिंबल से, ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिक हो या कैरेक्टर हो। बट आउटपुट डेटा में कैसे आता है, सैस कैसे उसको डिस्प्ले करता है, कैरेक्टर मिसिंग वैल्यूज इवन यू हैव मेंशन पीरियड सिंबल, वो डिस्प्ले होते वक्त ब्लैंक आते हैं। ओके, यू कैन सी हियर न्यूमेरिक मिसिंग वैल्यू जब वो डिस्प्ले होते हैं वो पीरियड सिंबल आते हैं। ओके, बट सेम थिंग इस डेटा में आपने सारे ही कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इवन दो इट वाज न्यूमेरिक, आपने बोला है कि ये मुझे एज अ कैरेक्टर ही रखना है। अब सभी कैरेक्टर हो जाएंगे तो इवन दो इट इज न्यूमेरिक वेरिएबल, क्योंकि आपने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है, तो यू कैन सी ब्लैंक कमिंग। दिस इज हाउ SAS डिस्प्ले द डेटा। नाउ लेट्स सपोज हाउ यू रिप्लेस द मिसिंग वैल्यूज। तो हमने 67 रो पे एक डेटा क्रिएट किया exp6, 68 रो पे हमने डेटा को कॉल किया दिस डेटा exp5, 69 रो पे वी क्रिएटेड एरे, एरे इज यूज टू ग्रुप वेरिएबल, ग्रुप करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को एक मैं ग्रुप का नाम देता हूँ, ग्रुप ए या ग्रुप इंडिया, ओके, लाइक दिस। सो एरे यूज़ होता है ग्रुप करने के लिए और हर ग्रुप का एक नाम होगा, राइट। तो ग्रुप का नेम है ऑल वार, क्योंकि हम सारे वेरिएबल को सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई भी नाम देते हो तो उसको मीनिंगफुल नाम दो ताकि पढ़ने वाला उसे एक बार में ही समझ जाए। तो हम सारे वेरिएबल को सेलेक्ट कर रहे हैं इसलिए हमने एरे का नेम ऑल वार दिया है। और टोटल 6 नंबर ऑफ वेरिएबल हैं तो हमने 6 मेंशन किया। आप चाहते थे यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल भी दे सकते थे। आपने बोला है कि नेम से लेके हाइट तक सारे वेरिएबल को सेलेक्ट कर लो। देखो नेम पहला वेरिएबल है, हाइट आखिरी वेरिएबल है, उसके बीच में जितने भी वेरिएबल है वो सेलेक्ट कर लेगा। और आपने डबल हाइफन दिया है ताकि वो सारे वेरिएबल को सेलेक्ट कर सके, नेम एंड हाइट के बीच में और इंक्लूडिंग नेम एंड हाइट भी। डू में आपने आई 1 to 6 लिखा है क्योंकि 6 वेरिएबल पे आपको चेंजेस चाहिए। फिर कंडीशन दिया इफ मिसिंग ऑल वार आई देन ऑल वार आई इक्वल टू नल। इस तरीके से सारे ही वेरिएबल्स में मिसिंग वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी नल से। फिर एंड किया है आपने डू लूप को एंड ड्रॉप किया है आई। ड्रॉप यूज होता है किन वेरिएबल्स को ड्रॉप करना है, नहीं चाहिए आपको आउटपुट में। आई हमारे इंटरनल पर्पस के लिए होता है इसलिए हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, हमें डिस्प्ले में नहीं चाहिए होता है।
then we are running, you can see all the missing values in all of these variables got replaced with null. तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी SAS आता है तो आप ये चीज़ ज़रूर समझे होगे, और अगर आपको ये चीज़ हेल्पफुल हुई और यूज़फुल हुई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हो. आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन दैट एज वेल. So thank you everyone and bye bye everyone.